Dear students, Namaskar. Myself S.K. Rajput, and today we will discuss the topic pH value. What is pH value? Listen. In this term pH, here P stands for potent. This potent is German language word. The potent means power. Power means concentration, quantity. And H means hydrogen ion concentration. Hydrogen ion, this is hydrogen, this is its ion, also called proton, and this large bracket is concentration. First of all, tell name of any acid, formula of any acid. Can you tell acid? All acid have H, like hydrochloric acid, HCl, sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3. So each acid have H. This H, when we dissolve acid, this is water. When we dissolve acid in water, they release H plus ion. This H plus ion is called proton. Proton is very smallest particle. Inside proton, no electron, only proton. This hydrogen, simple. This is the hydrogen. In hydrogen, we write that in hydrogen, inside nucleus there is one proton, and outside proton, outside nucleus there is one electron. In hydrogen, one electron, one proton present. If we have removed its electron from outermost shell, then what is remaining? Remaining is nothing. Remaining only proton. Proton means the nucleus of hydrogen. In the nucleus of hydrogen, there is only one proton. After removal electron from hydrogen, what is the remaining? This is proton. So this is called proton. Proton is very unstable species. So this proton is quickly accepted by water, and by accepting water, this proton, the new species H3O plus is formed. H2O, and this H is added in water. This species is called hydronium ion. It means that when we dissolve any acid in water, acid provide proton, and proton quickly accepted by water and form this type compound. This compound is called hydronium ion, H3O plus ion, hydronium ion. So suppose this is a container. In container there is solution. In solution we have added any acid in water. So in this solution we want to measure the quantity of hydrogen ion, means how many hydrogen ions are present in the solution. So the concentration means quantity of hydrogen. The quantity means concentration we measure in gram ion per liter. It means in 1 liter how many gram ions, means ions in quantity, gram in per liter solution of hydrogen. So in higher classes, so the definition of pH here, now we understand that the quantity means concentration of hydrogen ion in any solution. This is called pH value. Means by help of pH value we should try to find out how many number of gram ions, otherwise how much quantity of hydrogen ion present in this solution. In higher classes there will be, you study the formula of pH. This is pH, and formula of pH we write in this pattern. pH equal to minus, this is log, this is hydrogen ion in concentration. It means negative log of hydrogen ion concentration. This is called pH value in higher classes. Suppose I am giving you the value. Suppose in any solution
the concentration of hydrogen is 10 into the power minus 7 gram ion per liter. It means in 1 liter the concentration of hydrogen is very less, that is 10 into the power minus 7 gram ion in 1 liter. This quantity is present of hydrogen ion in any solution. So I am putting this value here. So what we observe? Listen, simple. The pH minus log here 10 into the power 7. In mass, in rule log, this power we write here. So the minus and minus will become 7 and here log 10. The value of log 10 is 1. So the pH will obtain 7 into 1 into equal to 1. It means the pH value of any solution in which hydrogen ion concentration is 10 in power minus 7 is obtained 7. This solution, if in any solution hydrogen concentration, this solution is called neutral. Neutral means it is neither acidic nor basic. It is in moderate condition. This is middle. So you remember that there is the scale means range. The value 7 indicate that solution is neutral if the pH value decrease from 7. In this term, the power decreasing means concentration of hydrogen increase. So the value of 7 decrease from 7 decrease till 0. This is called acidic range. It means here the hydrogen ion concentration is increasing and solution become acidic. Here that is more acidic. On here, if value say increase from 7 till to 14, it means that hydrogen ion concentration is decreasing. The value of pH increasing. Listen, value of pH and hydrogen concentration both are connected with minus sign. This minus sign indicates that if the pH value is increasing, concentration is decreasing. Here, for 7 minus 7 we obtain 7. Plus 7 means 10 power minus 7. 10 power minus 7 is hydrogen concentration and value pH with plus 7. If value of pH is increasing from 7 to higher 14, suppose it become 14, then here become 10 into the power minus 14. Minus 14 means concentration of H plus decrease. So this formula indicates that if concentration is decreasing, pH value will increase. If pH increase, solution become basic, otherwise alkaline. And here if this value is decreasing means concentration decreasing, it means pH value here decreasing, concentration in this value increasing with minus sign. If from 7 to 0, solution become acidic. So this is introduction of pH. pH means the quantity of hydrogen ion in solution. We can represent in gram ion per liter, otherwise in simple value from 0 to 7. So you remember simple 0 to 7 acidic, 7 to 14 alkaline, basic. But our question is, what are different applications or uses of pH value? So for remembering different applications, different uses of pH value, we have writing a trick. PANDIT 1 2 3 4 5 6 पंडित. There are 7 different type point, 7 पॉइंट जिनकी हेल्प से हम याद कर सकते हैं कि पीएच की हमारी जिंदगी में, प्लांट्स की, सभी एनिमल्स की जिंदगी में क्या भूमिका है. Here P means plants and animals. Listen, also human beings. Plants and animals are very sensitive for pH and they can survive within a very narrow limit. Suppose human being. For human being, the pH range is from 7.0 to 7.8.
आप सुनिए 7.0 से 7.8 के बिटवीन ये पीएच वैल्यू हमारे ब्लड की है, और इस वैल्यू के बिटवीन हम अच्छे से काम कर पा सकते हैं, अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। अगर हमारे बॉडी ब्लड का पीएच 7 से कम हुआ या 7.8 से ज़्यादा हुआ और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरीके से सारे प्लांट्स भी, सारे एनिमल्स भी, अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग पीएच रेंज पे, मगर वो रेंज बहुत छोटी रहती है, बहुत नैरो साइज की रहती है, तो उस रेंज पे काम करते हैं। तो अगर पूरे नेचर का पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी तो सरवाइव करना दिक्कत हो जाएगी। सो फर्स्ट इज P for plant, animal, human being, they are very very sensitive for changing in range of pH. Second, A. Number 2, A. A means acid rain. Acid. Do you know acid rain? If in atmosphere there are some gases, suppose CO2 gas, NO2, these all are gases present in atmosphere. ये सब gases होती हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश में आता है पानी। ये वाटर जब इन गैसेस से रिएक्ट करता है तो इनके करस्पॉन्ड एसिड बनाता है। वाटर रिएक्ट विद CO2 फॉर H2CO3, वाटर रिएक्ट विद NO2 फॉर HNO3, वाटर रिएक्ट विद SO2 फॉर H2SO4, अदरवाइज SO2 gas also exists, SO3 gas also exists. So H2SO4, H2SO3 and H2SO4, these all acids are formed when water H2O react with gases present in atmosphere. Now these different acids mix with water as a rain, and this phenomena is called formation of acid rain. If the pH value of acid rain become less than 5.6 value, then this is called acid rain and its pH value decrease. अब सुनिए, अगर 5.6 से कम हो जाए जो रेन है उसकी पीएच वैल्यू ड्यू बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड, तो इस एसिड रेन से सभी को नुकसान होता है। ये एसिड रेन बिल्डिंग्स पे पड़ती है तो बिल्डिंग का जो व्हाइट कलर है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सब घुलने लगता है, लाइमस्टोन। प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा सकते, जो एक्वेटिक एनिमल वो मर जाते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं जिंदा रह पाएंगे। तो आपने सुना है वीनस जो है, वीनस की सरफेस पे सल्फर होता है, वो सल्फर सब निकलता है और बहुत सी गैसेस बनाता है, और जब वहाँ वाटर एटमॉस्फेयर मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। तो उसकी सरफेस पे, आप वीनस सरफेस पे व्हाइट एंड येलो कलर का पूरा धुआं रहता है, फ्यूम, और वो रहता है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। इसीलिए वहाँ पर सर्वाइव करना किसी की बस में नहीं। तो हम भी देख रहे हैं कि हम डे बाई डे एटमॉस्फेयर बिगाड़ रहे हैं, एसिड रेन बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेयर एसिडिक हो रहा है, हमारा और सभी जीव जंतुओं का रहना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा अगर पीएच वैल्यू बहुत गिर जाएगी। तो आप ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल जो कलर चेंज हो रहा है वो एसिड रेन की वजह से चेंज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड, एन स्टैंड फॉर नेचर ऑफ सॉइल। केवल वाटर का ही नहीं, ह्यूमन बीइंग का नहीं, सॉइल का भी नेचर चेंज होता है। अगर जितनी फैक्ट्रीज वगैरह है, एसिड वगैरह है, ये एसिड रेन है, ये सॉइल में जाते हैं और सॉइल का पीएच वैल्यू चेंज होता है, और उससे सॉइल में रहने वाले जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु और प्लांट, उन सब का नेचर बदल जाता है, और मतलब सॉइल भी चेंज होती है। नेक्स्ट डी, डी मीन्स हियर न्यू पे 1 2 3 4th is D. D means digestion system. So डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, इधर सुनिए। जैसे ये स्टोमक है, स्टोमक में क्या होता है कि यहाँ पर एक एसिड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे स्टोमक के अंदर बनता है। ठीक, ये क्या करता है, स्टोमक जो भी हम हार्ड चीज खाते हैं उसको मेल्ट करता है, उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है और डाइजेस्ट करता है। मगर एक प्रॉपर्टी कि ये एसिड स्टोमक के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। वो म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्टेड नहीं कर पाता, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स रहती है वो डैमेज नहीं होती इससे। मगर जब भी कोई मीट वगैरह खाता है तो उसको ये मेल्ट कर देता है। मगर जब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तब भी ये बनेगा, और स्टोमक में HCl बनेगा तो एसिडिटी होगी। इसी वजह से
हमारे स्टोमक के पीएच वैल्यू 3.5 के आसपास रहता है स्टोमक के अंदर का, मगर ब्लड का नहीं कह रहे, HCl की वजह से। और जब ये HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है या हमने ये बना टाइम पर हमने खाना नहीं खाया तो हमारी बॉडी में एसिडिटी होने लगती है। तो उस एसिडिटी को, HCl को न्यूट्रल करने के लिए लोग बाहर से कुछ मेडिसिन खाते हैं, उनको कहते हैं एंटासिड। और एंटासिड मतलब वो कंपाउंड जो एसिड को न्यूट्रल कर दे। एसिड आप एसिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, घर में बेकिंग सोडा रहता है, आप वो खा सकते हैं, क्योंकि ये सोडा HCl एज एसिड एंड ये स्टोमक, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एल्कलाइन या बेसिक होता है ना, तो ये बेस एसिड से रिएक्शन करता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, और न्यूट्रल करने के बाद यहाँ पर NaCl वाटर अलॉन्ग विद CO2 गैस बनती है, और वो CO2 गैस की बबल्स आते हैं और ये हमारा साल्ट बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या कभी कभी मार्केट से आप कुछ मेडिसिन लाते हैं तो वो लोग देते हैं आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देयर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज Mg, दिस इज OH, सो होल टू मिल्क, इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देयर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज base present in medicine in as antacid, and this antacid react with HCl which produced in our stomach. After the reaction what will form? Magnesium chloride, this is salt, and along with water is formed. So I am writing here 2. So salt in neutralization is simple. Suppose this is base, this is acid. When these two react, after the reaction salt along with water will form. This is called neutralization reaction. So the compound which used to neutral the acid which is formed in our stomach, these substances called antacid. Just like baking soda, sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, this is called milk of magnesia. So plants are sensitive, acid rain, nature of soil, D for digestion, and next I. This second last one, I means different insects. Different insect, just like ant. In ant there is acid called HCOH. आपने देखा जब भी एंट आपको काटती है, या हनी बी, सपोज हनी बी के अंदर भी एक एसिड रहता है, उसका नाम है ये एसिड HCOH. इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड. दिस एसिड कॉल्ड formic acid. Also you can say this is one carbon having, this is called methanoic acid. So methanoic acid IPC नेम है इसका, ये जनरल नेम है. एक एसिड है HCOH. ये एसिड एंट में पाया जाता है, इसीलिए तो एंट का नाम है फॉर्मिका. फॉर्मिका मींस फॉर्मिक एसिड उसके अंदर रहता है, इसलिए फॉर्मिका कहते हैं उसको, एंट को. तो जब भी एंट आपको काटती है, हनी काटती है, आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाता है. ये फॉर्मिक एसिड जैसे बॉडी में जाता है इरिटेशन होने लगता है और हमें चुभन या जलन होने लगती है. अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत जहां पर उसने काटा है वहां पर एक बेस डाल दीजिए. ये एसिड है, ये बेस है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. आपके घरों में रहता है, इसका नाम है बेकिंग सोडा. तो जैसे आप बेकिंग सोडा मिलेंगे, ये बेस है, वो एसिड है, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के जस्ट बाद आपका एक साल्ट बन जाएगा HCOONA along with CO2 and वाटर मॉलिक्यूल. ये सोडियम फॉर्मेट साल्ट बनता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन यही है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट देन अ साल्ट along with वाटर इज फॉर्म, दिस प्रोसेस का न्यूट्रलाइजेशन. ऐसे सिमिलर आपने एक नेट पे सर्च करिए, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेटल प्लांट. एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं नेटल प्लांट. नेटल प्लांट के अंदर भी यही रहता है. क्या रहता है? HCOH फॉर्मिक एसिड रहता है नेटल प्लांट के अंदर. जब उसमें छोटे छोटे रुए रहते हैं, अगर जब नेटल प्लांट आपको टच होगा तो आपको इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी के अंदर इस फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करता है. फॉर्मिक एसिड HCOH कहां से? नेटल प्लांट से. अब एक दूसरा प्लांट आप सर्च करिए नेट पर, उसका नाम है डॉग प्लांट. अगर डॉग प्लांट, उसमें रहता है कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डॉग प्लांट के अंदर रहता है और ये नेटल प्लांट में रहता है. नेटल प्लांट टच करने से आपको इरिटेशन होने लगेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी में मेथिनोइक एसिड इंजेक्ट करेगा. आप डॉग प्लांट लीजिए, उसको रब कर दीजिए, तो ये दोनों, ये बेस एसिड न्यूट्रल कर देंगे और आपकी रिएक्शन के बाद यहाँ पर
एक साल्ट बनेगा, सॉरी कैल्शियम बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो ये हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सभी इंसेक्ट अपने आप को सेव करने के लिए अपनी बॉडी में एसिड वगैरह रहते हैं, वो आपको इंजेक्ट करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये इसको बोलते हैं इंसेक्ट। एंड लास्ट टी लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है। टी लास्ट पॉइंट। टी मीन्स टूथ डिके। आपको जो भी लास्ट पॉइंट 1 2 3 4 5 6 टूथ डिके, हम इनको समझते हैं फिगर से। देखो जैसे कि ये माउथ है और माउथ के अंदर ये जो है ये टीथ है, और जो भी टीथ होता है उसके बाहर एक इनेमल होती है, एक साइनिंग सरफेस, वो एक कंपाउंड की बनी है। तो उस कंपाउंड का नाम रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमने फॉर्मूले का देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम CaPO4, the valency of calcium is 2 and valency of phosphate is 3. This is calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट एक साइनिंग कंपाउंड है जो दांतों के बाहर एक इनेमल के रूप में रहता है। और जनरल नॉलेज का सवाल है, पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड मटेरियल यही है और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये दांतों के बाहर रहता है और दांतों की प्रोटेक्शन करता है। ठीक, जब आप कोई मीठा खाते हैं उससे शुगर प्रोड्यूस होती है, और जैसे शुगर यहाँ बीच में दांतों के बीच में फंसती है और दांतों के बीच में माउथ में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उस शुगर को डिकम्पोज कर लेते हैं और डिकम्पोज करके बनाते हैं एसिड। और जब एसिड कहाँ से आ गया? आपने मीठा खाया, स्वीट शुगर को कौन ने डिकम्पोज किया? बैक्टीरिया ने, जो माउथ में पाए जाते हैं, वो बनाते हैं एसिड। और ये एसिड इस कैल्शियम फॉस्फेट को डिकम्पोज करने लगते हैं और हमारे दांतों की जो लेयर है कैल्शियम फॉस्फेट की वो डिसॉल्व होने लगती है और हमारे दांत धीरे धीरे डिक्के होने लगते हैं, छह होने लगते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए कि आप अपने दांत स्वस्थ रखना चाहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो शुगर कम खाइए, मीठा कम खाइए। अगर खाया है तो उससे बैक्टीरिया डिकम्पोज करके जो एसिड बनाते हैं उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए टाइम टू टाइम मुंह धोइए या फिर पेस्ट करिए। तो पेस्ट जो रहता है वो बेसिक रहता है, ये एसिड और बेस न्यूट्रल कर लेगा, आपका साल्ट और वाटर बढ़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगी। सो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते जल्दी से, क्या पढ़ा हमने? पीएच मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन। द applications of pH is Pandit, P and D. P means plants, animal, human being are sensitive for pH. A means acid rain. N means nature of soil. D means digestion. I insect and T means tooth decay. Thank you. Namaskar for watching. Stay safe and